We want to find out the trigonometrical ratios for such a triangle, and already in the previous lecture we have seen what theta, if this is angle, then sine theta will be what? Opposite side upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, and cos theta will be this adjacent side upon hypotenuse. Tan theta is, आवाज अच्छे से नहीं आ रही. We have to calculate the trigonometrical ratios because this is just a fundamental point, basic point है. So let us calculate, do this. So just for our convenience, what is the meaning of these trigonometrical ratios? एक बार बता देता हूँ. Then you have to find out. Sin theta means the opposite side upon hypotenuse. This triangle is having three sides, this perpendicular, base and hypotenuse. So this perpendicular will be treated as the opposite side of this theta. Theta की opposite side है ये, और ये adjacent side जो base है, that will be treated as adjacent side of this angle theta. So sine of theta means what ratio? This opposite side divided by side, that is hypotenuse. Likewise, cos theta will be this adjacent side will be divided by this hypotenuse. Likewise, tan theta means this opposite side divided by this adjacent side. And cot theta, sec theta, cosec theta are the reverse of this. तो इसको फॉलो करते हुए ये एक ट्रायंगल मैं दिया हूं आपको. इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ दिस ट्रायंगल. So first of all you have to find out this side because तीन side given है और दो side का value given है. So first thing you have to calculate this third side. Then after you have to find out by following this definition trigonometrical ratios, value of this trigonometrical ratios for this triangle. ये आपको find out करना है. But this question Pythagoras. With the help of Pythagoras we will find out this side. And what is the Pythagoras theorem says? Pythagorean theorem. Right. So if we calculate this, that directly I am writing this because name given नहीं है यहाँ पे इसके sides को. So hypotenuse square, this will write in the format of square. So this hypotenuse square will be is equals to both side square. So this hypotenuse, let me write out this in the format of square. So this is in the format. So hypotenuse square, ये पाइथागोरस का बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट है जो आप लोगों ने ये यहाँ पे अभी यूजुअली राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये राइट एंगल रहता है ना, तो ये 90 हो गया. बाकी एंगल का मेजरमेंट हमको रिक्वायर नहीं है. ट्रिग्नोमेट्रिकल. So this is hypotenuse square is equals to this 3 square plus 4 square. So this is both side square, 3 square plus 4 square. Right. So this is nothing but अगर ये दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, this is 9 plus 16. That is, this is what? 25. Right. So the value of hypotenuse, what we are getting, hypotenuse will be positive always. So this is 5. Right. So here we got the value of hypotenuse as 5. Just call this as R. यहाँ पे R हमको इसको बोलेंगे अगर, so that format here this is, we will write out this as R. So the value of R we are getting as 5. So now we have all the sides. R is equals to 5 we have. So this is 5. Now a small r है. So all the sides are there. So with the help of this, we'll find out what is the meaning of sine theta, what is the value of sine theta, what is the value of cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. Do it fast. अब करो इसको कैलकुलेट और बोलो मुझे वैल्यू. Right, sine theta will be opposite divided by hypotenuse. So this is 3 by 5. In the similar way, cos theta will be adjacent upon this one, adjacent upon x upon r. Likewise, tan theta y by x. पूरे values calculate करो और बोलो मुझे one by one. What is the value of cos theta?
cos theta will be means 4 by right. Next tan theta. ओके ओके सो लेट राइट मैं अभी यहाँ पे स्टार्टिंग के टर्म्स है इसलिए मैं आपको शो करके बता रहा हूँ, लेकिन बाकी एक्चुअल में आपको समझ गया। माइक ऑफ करो आपका। सो इन द सेम वे दिस cos theta, sec theta, all these things we have to put out here one by one. So this is cos theta, tan theta. This is what cos theta, tan theta. Similar pattern में cos theta will be adjacent upon hypotenuse. So this is 4 by 5. अच्छा एक मिनट। Cos theta is equals to opposite adjacent upon hypotenuse. In the same way, the tan theta we have to take. Tan theta is nothing but opposite upon adjacent. So opposite is what? 3 and divided by 4. So tan theta will be this one. Tan theta will be opposite upon adjacent. Same way. So sin theta मिल गया, cos theta मिल गया, tan theta मिल गया। इसके अब ये रिवर्स हमारे पास कैलकुलेट करना है। सो रिवर्स cos का रिवर्स क्या हो जाता है? sec हो जाता है। So that sec theta will be what? Hypotenuse upon adjacent. So here this will be what? 5 by 4. Sec theta will be hypotenuse, cos का उल्टा sec, राइट। सेम वे में साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक। कोसेक थीटा विल बी व्हाट? hypotenuse upon opposite side. So this will be 5 upon opposite side 3. So this will be the opposite of this. So cosec theta will be hypotenuse upon opposite side. Likewise, opposite of tan theta we will have, that is cot theta, and that is adjacent upon opposite, that is adjacent is 4, opposite is 3. So these are the values of the trigonometrical ratios. And cot theta is equals to 1 by tan theta. These are the relations we got. Cosec theta is 1 by sin, sec is 1 by cos, cot is 1 by tan. अच्छा इसको याद कैसे रखना? How to remember this? See, यहाँ पे कोसेक साइन और सेक कॉस, सबके अंदर क्या है? स्टार्टिंग देखो, अगर ये स्टार्टिंग सेक और कोसेक और कॉट ये एक फैमिली से बिलोंग करते, ये वाले कोसेक सेक कॉट ये एक फैमिली से बिलोंग करते, और साइन कॉस टेन ये एक फैमिली, मतलब एक पैटर्न के है ये, और ये एक पैटर्न के। तो इसमें से अगर कोसेक सेक में से अगर सी आ गया तो उसका उल्टा साइन उसका अपोजिट रहेगा। तो कोसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन, और सेक कोसेक की फैमिली में से एस स्टार्टिंग में आ गया, सेक है तो उसका उल्टा सी रहेगा 1 बाय कॉस, और साइन कॉस की फैमिली में से एस आया तो उसका उल्टा सी, यहाँ पे कॉस आ गया तो उसका उल्टा सेक। लाइकवाइज कॉट का उल्टा टैन, टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, ये रिलेशन अब हम बहुत जगह यूज करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ डिफिकल्टी है तो पूछ लो, क्योंकि ये दिस इज जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन। ठीक है,
ये क्लियर हो गया रिलेशन? No. See, we'll take the help of this tan theta and we'll find out another relation in terms of cos and sin. So here in terms of perpendicular, अगर हमने इसको बोलेंगे opposite side, और ये परपेंडिकुलर बेस के बजाय हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज वी आर कॉलिंग एडजेसेंट साइड। तो ये एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड दोनों की टर्म है। अब ये दोनों को अगर हमने डिवाइड कर दिए, अपोजिट साइड और ये वाली टर्म जो है, ये इसको इन टर्म्स ऑफ दिस लिख दिया मैंने, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, tan थीटा इज व्हाट एवर एंगल। अगर आपको ट्रायंगल की जरूरत है सो विल टेक दिस हियर। So keep in mind, adjacent opposite side is y, adjacent side is x. अब हम इसको क्या करेंगे, अभी हमारे पास कोई भी क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, कोई इक्वेशन अगर है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऊपर सेम न्यूमरेटर को एक टर्म से और डिनोमिनेटर को एक टर्म से ऑपरेट कर सकते हैं। हाइपोटेनियस को यूज करके अगर हमने ऊपर वाली भी टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों को अगर हमने डिवाइड कर दिया सपोज हाइपोटेनियस से, सो हाइपोटेनियस इफ इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों से हमने डिवाइड कर दी, सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, दिस वन। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड था तो डिनोमिनेटर भी हमने दोनों को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया। व्हाट, y डिवाइडेड बाय r, x डिवाइडेड बाय r। कर सकते हैं ऐसा? यस कर सकते। क्यों? दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेम कर रहे हैं, आर आर कैंसिल हो जाएगा, y बाय एक्स ही बचेगा, दैट इज वैल्यू ऑफ tan थीटा। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस y बाय एक्स? दिस y बाय एक्स अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ व्हाट, साइन ऑफ थीटा है, राइट? y by r मतलब that is sin of theta और x by r means yes cos of theta. So we are getting one new relation, that is this tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. So see, हमारे पास जो हमारा यूजुअल रिलेशन था, so I will write out this again once. So our relation is what, tan theta, which is what, परपेंडिकुलर, और इन टर्म्स ऑफ अगर आपने इसको अपोजिट साइड और ये करना है, सो यू कैन राइट आउट इफ यू वांट दिस एज अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन है? ओके, आई विल रिपीट दिस। सी, डेफिनेशन ऑफ tan थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर tan थीटा। tan थीटा की डेफिनेशन है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड y बाय एक्स। सो व्हाट वी डिड, हमने क्या किए, ऊपर वाले न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक टर्म से जो भी r का वैल्यू है उससे डिवाइड कर दिए। कर सकते हैं ऐसा? एक मिनट, मैं आपको एक सादी न्यूमरेटर नंबर की एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास है नंबर क्या लिखेंगे, 4/6। ठीक है, तो ये 4/6 को मैं कैसे कर सकता हूं, 4, दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 3 या फिर 4 डिवाइडेड बाय कोई भी एक नंबर ले लो। 4 डिवाइडेड बाय 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करेंगे और इससे 3 करेंगे। कर सकते हैं ऐसा? 3 से इसका क्या मीनिंग हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग हो रहा है 4 divided by 3 into 3 divided by 6, right?
इसका ये मीनिंग हो रहा है ये 6/3 ऊपर आगे क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा. So this 3 will get cancelled. What finally we are getting 4/6, right? So there is no change. 4/6 का 4/6 ही रहेगा. तो सेम क्वांटिटी से अगर हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें so there will be no effect. जो ओरिजिनल हमारा फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन एज इट इज रहता. तो सेम थिंग हमने यहाँ पे किए. ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है तो ये हाइपोटेनियस का जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे r उससे डिवाइड कर दिया हमने y/r x/r हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिए. लेकिन हमारे पास व्हाट वी हैव द डेफिनेशन ऑफ y/r. this ratio of the trigonometry is nothing but sin theta and this x/r इसका वैल्यू है हमारे पास cos theta, right? So y/r को हम लिख दिए sin theta, x/r को लिख दिए cos theta. So what we got is, yes, we got the relation of tan theta is equals to sin theta by cos theta. अभी समझा? Now these two important relations. So whenever आगे यहाँ से हमको ये relations use करने हैं. Tan theta is equals to sin by cos, cot theta is equals to cos by sin. So these three relations and these two relations are combiningly very important. और यहाँ पे ये जो relations है cosec theta is equals to 1/sin theta. तो ये sin theta को अगर हमने ये साइड लेकर चले गए तो ये क्या हो जाएगा sin theta into cosec theta and the product of these will be 1, right? दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. and in the similar way यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको ये साइड अगर लेके गए हम so that will be again, मैं थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूँ आपको क्या बोल रहा हूँ. So this is cosec theta, this cosec theta into this right, this sin theta, ये sin theta को ये साइड लेकर जाएंगे तो sin theta into cosec theta is equals to 1, sec theta into cosec theta is equals to 1. So cot theta into this tan theta is equals to 1. तो ये रिलेशंस कौन से नए रिलेशन हैं ये आपको समझने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. ये पूरे आपके बेसिक रिलेशंस है. These are the basic relations to find out which angle, और एक आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया so with the help of that you can easily calculate the another one. ठीक. So for example tell me कौन से एंगल को आपको सपोज कोई एक एंगल बोलो जिसका डिग्री में वैल्यू है. Okay, 30. Right. We want to calculate the value of angle 30 in the format of radian. उसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है. So what we'll do is we'll first of all ये रेडियन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, right? So this is equals to radian. माइक ऑफ करो. रेडियन में थीटा क्या होगा? So this is हमारे पास क्या है कन्वर्जन का वैल्यू. हमको थीटा की वैल्यू अगर 30 है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. So we'll convert this theta that is 30 into what? Pi by 80, 180. So we'll take this as pi divided by 180. So pi divided by 180. So what we are getting, this 0 to 30 and this 180. So this will be what? Nothing but 0, 0, 3, 6 are 80. So this will be what? Pi by, yes, division में क्या हो जाएगा? Right. Pi by 6 ना, 3, 6 are 18. So in this way we are calculating the value of theta. अगर हमारे पास वैल्यू है डिग्री के अंदर, हाँ ये हमारे पास कन्वर्जन है ना. अगर थीटा अगर हमारे पास 30 है, आपने ही बोले थे ना, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 इन डिग्री तो रेडियन में क्या होगा? यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ. इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. अब यहाँ पे डिग्री इसलिए लिखा है क्योंकि अब इसका नोटेशन कैसा है, 30 के ऊपर यहाँ पे एक इस टाइप का सर्कल ले देते हैं हम, 0 लिख देते हैं. 30 डिग्री उसको 30 डिग्री बोलते हैं.
So if theta is degree, if theta is equals to 30 degree, then in radian थीटा क्या हो जाएगा, ये इस टाइप में हो जाएगा. अगर थीटा 30 डिग्री है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप में कन्वर्ट करेंगे, 30 इंटू पाई बाय 180 इस टाइप में. तो ये थीटा यहाँ पे रख देंगे जो भी डिग्री में रहेगा और इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया ये. तो मैं एक थीटा दे रहा हूँ, इसका वैल्यू बोलो मुझे इन टर्म्स ऑफ डिग्री. सो दिस इज व्हाट 270. थीटा इज इक्वल्स टू 270. Tell me the value of this in terms of degree, sorry in terms of radian. ये डिग्री में गिवन है, इसको डिग्री में अगर फॉर्मेट में लिखना है तो डिग्री के फॉर्मेट में ऐसा लिखते हैं इन द पावर 0. टू 270 डिग्री. अब इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना है इन द फॉर्मेट ऑफ रेडियन. सो सिंपली यहाँ पे थीटा डिग्री जो है वहां पे रख देंगे और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेडियन मिल जाएगा आपको. सो टेल मी व्हाट इट इज. For calculating the value of 270 degree in radian, what we'll do is we'll multiply this 270 into pi by 180. So ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 और 27 एक ही टेबल में आते हैं, राइट. कौन से 3. So this is what 3 6 जा 18 and 3 9 जा. अगर आपने इस टाइप में किया फिर बाद में और क्या हो जाएगा, ये इस टाइप में आ गया, सपोज 9 पाई यहाँ पे लिख देंगे. ये यहाँ तक पूरा कैलकुलेट करना है, उतना कैलकुलेट करने की हमको कोशिश करनी चाहिए. सो हियर 9 पाई डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, चलो ये यहाँ तक कर लिया आपने, 9 पाई डिवाइडेड बाय 6. लेकिन अगेन यहाँ पे ये क्या है, 3 के टेबल में आते हैं. सो दिस इज व्हाट 3 पाई डिवाइडेड बाय, राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ what 270 degree in terms of what radian. So 270 in radian is what 3 pi by 2. In the similar way, can you tell me the values of 45 60 90 180 360? So let me write out all this in the format of question. Find the value, let me take this theta. यस, आवाज नहीं क्लियर है आपकी. फाइंड द वैल्यू ऑफ 270 मीन्स 3 पाई बाय 2. ये क्वेश्चन है, हमको फाइंड आउट करना है, थीटा का कन्वर्जन फाइंड आउट करना है. आप कहाँ से आया कैसे बोलेंगे. कन्वर्ट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ दी थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन. लाइकवाइज ये रेडियंस में कन्वर्ट करना है, 45 60 90 180 360 ऑल दीज वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रेडियन. हाउ, ये वाला फॉर्मूला यूज करके थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180. सो जो डिग्री की वैल्यू गिवन है यहाँ पे रख देंगे और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया. अगर थीटा 30 है तो पाई बाय 6, थीटा 270 है तो 3 पाई बाय 2. इन द सिमिलर फैशन calculate the values of radians of these degrees 45 60 90 180. yes, ये थीटा के वैल्यूज है, इसको हाँ पाई की वैल्यूज नहीं लेना है, पाई के टर्म में रखना है एज इट इज. पाई अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, पाई को डिस्टर्ब नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट कीप दैट पाई एज इट इज. हियर I am enlisting here. So whenever we are using 30, that means pi by 6 here onwards. And whenever we are using 45, that will be pi by 4. ये conversion आप लोगों ने कैसे किया है? This is the way. Pi by 4, 45. 45 pi by 4. 60 pi by 3, pi by 3, 60. दोनों एक ही meaning है. 90 और pi by 3. So likewise, these are the calculation to calculate. So
use, you can use the conversion of radian to degree also. जो भी सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पाई की वैल्यूज है, अब ये आगे दूसरे वैल्यूज भी बड़े भी अगर आ सकते हैं, सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट दैट इन टर्म्स ऑफ डिग्री, जस्ट वी हैव टू पुट अप हियर. अब ये खाली इसका रिवर्स है, पाई बाय 180 है, उसका 180 बाय पाई. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू रखे, देखो यहाँ पे जैसे पाई बाय 3 रखे यहाँ पे, या फिर पाई बाय 3. हमने स्टार्ट में क्या कैलकुलेट किया, पाई बाय 6 करें, पाई बाय 6 रखो यहाँ पे, तो पाई बाय 6 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 बाय 3 दैट इज 60. ठीक है, ये कन्वर्जन क्लियर है. खाली आप लोगों ने ये याद रखो, क्योंकि ये रिवर्स कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती रिवर्स कन्वर्जन की, फॉरवर्ड कन्वर्जन की जरूरत ज्यादा पड़ती, दैट इज फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, उसकी जरूरत है. और कैलकुलेटर में भी हमको उसको कैलकुलेट करते वक्त जो शिफ्ट के अंदर मैनुअल है उसका, उसके अंदर कौन सा रेडियन में कैलकुलेट कर रहे कि डिग्री में कैलकुलेट कर रहे, वो कैलकुलेटर के ऊपर लिखा हुआ रहता, वो भी चेक करना जरूरी रहता. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. वी आर कंसिडरिंग दिस बिकॉज सी वी आर मेकिंग दिस. अब ये मैंने स्पेसिफिकली इस टाइप में ट्रायंगल लिया, डायरेक्टली मैं स्टार्टिंग में भी इस टाइप का एक ट्रायंगल लेके आपको बता दे सकता था, बट आई हैव चूजन दिस इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसमें हमारे पास इस टाइप में ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो ये चारों क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के वैल्यू यहाँ पे क्या रहते, पूरे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव रहते, यहाँ पे निगेटिव रहते. तो अगर हमने इस क्वाड्रेंट में पॉइंट लिए तो पॉजिटिव रहता, इस क्वाड्रेंट में लिए तो यहाँ पे एक्स निगेटिव रहता और ये वाई पॉजिटिव रहता, यहाँ पे पूरे दोनों भी निगेटिव रहते फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता. तो अगर हमने ये ट्रायंगल इधर लिए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हमने फाइंड आउट किए, तो उसका साइन भी हमारे पास इफेक्ट करेगा. यहाँ पे अगर लिए हमने थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल लिए ऐसा कोई, तो यहाँ पे भी इफेक्ट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिए तो वहां भी इफेक्ट करेगा. दैट इफेक्ट वी हैव टू ऑब्जर्व. सो फॉर दैट इफेक्ट आवर वैल्यू ऑफ थीटा वी विल टेक इन टर्म्स ऑफ रेडियन ओनली. ठीक है, so that effect also we'll see if time permits. टाइम है क्या?